हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। वेलकम टू द चैनल और एनाल इनसाइट्स बाय आबिद, एक ऐसी दुनिया जहां मैं आपको किडनीज के रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, खुद भी सीखता हूँ और आपको भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। सो जो आज हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी किडनी एनाटॉमी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, किडनी की एनाटॉमी आज हम डिस्कस करेंगे। बट वी विल डिवाइड इट इन टू पार्ट्स बेसिकली सो एज टू मेक नॉट टू मेक द वीडियो टू मच लेंथी। Today we'll only discuss the external anatomy of the kidney and in next part we'll discuss the internal anatomy of the kidney. So जो आज हम cover करेंगे यहाँ पे सब titles और सब topics, those will be size, shape, external morphology, structure, location of the kidney along with the coverings those were protecting the kidney from outside. So these will be our subtopics. These all will be our subtopics in this video. आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट, जो लाइक, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन so that I can continue to upload the videos related to the same. So let's go without any delay. हमारी आज की वीडियो होगी, it will be beneficial and applicable for all the types of students, whether any appearing for any board examinations or attempting any competitive exam. So it will be basically made for all types of those students who can take benefits from this video and understand the basic anatomy. So let's go, let's understand with some basic diagrams. First, going towards the diagrams, मैं आपको बोल दूं कि जो हमारी किडनीज होती है, the kidneys are retroperitoneal organs. ये पॉइंट आप याद रख लेना। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स का मतलब ये है कि जो किडनीज होती है they lie outside और behind the peritoneum. पेरिटोनियम के बाहर वो प्रेजेंट होते हैं। Those were not being covered or protected by this peritoneum. Peritoneum होती क्या है? It is a membrane that is surrounding or lining the abdominal cavity. Abdominal cavity में जो भी visceral organs होते हैं उनको कवर अप करते हैं, लाइन करते हैं, एंकर करते हैं this peritoneum. But the kidneys, the fact with kidneys is that the kidneys don't lie within this peritoneum. So because of that, there is a bit of less cushioning and anchoring and means of protection to the kidneys. So that's why naturally it has been covered with 2 or 3 extra layers. We will discuss those in the later part of the video. So let us start. First we will study this external anatomy by means of the diagrams. I will show them one by one. So let's go. तो चलो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे किडनी मॉर्फोलॉजी। एक्चुअली जी हाँ, जो किडनी की मॉर्फोलॉजी है एक्सटर्नली, हाउ इट रिजेंबल्स, हाउ इट लुक्स, व्हाट्स द कलर, लेंथ, साइज, वेट एंड पोजीशन ऑफ दिस किडनीज, वी विल डिस्कस दिस इन दिस पार्ट। किडनी मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले जो शेप होती है किडनी की, ठीक है, जो शेप होती है किडनीज की, बीन शेप्ड पेयर्ड ऑर्गन, ठीक है, ये बीन शेप्ड होती है, पेयर ऑर्गन, इट्स नॉट प्रेजेंट इन ओनली वन, दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स, ठीक है। उसके बाद जो कलर होता है इसका किडनीज का, दैट्स रेडिश ब्राउन, बीन शेप्ड पेयर ऑर्गन्स। सो रेडिश ब्राउन इसलिए होती है ड्यू टू द सफिशिएंट फ्लो ऑफ द ब्लड कंटिन्यूअसली विद इन देम। ब्लड कंटिन्यूअस ज्यादा फ्लो करने की वजह से इनमें जो कलर आता है दैट अपीयर्स रेडिश ब्राउन इन कलर। Then talking about the size, okay, size of these kidneys. Each kidney, this is the anterior view. हमेशा याद रखना कि जो हम देखते हैं फोन में is talking if it is in anterior view, then the right side of the diagram becomes our left and the left of the diagram becomes our right. ये होता है फंडा with the when we look in anterior mode. अगर posterior mode होता है तो हमारा right ही बनता है, left ही बनता है। इसका एक किडनी के बारे में बात करेंगे, लेंथ, it is up to 10 ranges from 10 to 12 centimeters. So the length is this. ये होती है किडनी की लेंथ, ठीक है, it ranges from 10 to 12 centimeters. Then talking about the width that is breadth, okay, from the lateral border, we will talk about the borders too, up to the hilum medial border, it's 5 to 7.5 centimeters. And the thickness, जो thickness होती है एक किडनीज की, that is actually 2.5 to 3 centimeters. ये सब होता है साइज के रिलेटेड। जो किडनी का साइज है, लेंथ है, विड्थ है और थिकनेस है, that is 10 to 12 centimeters, 5 to 7.5 centimeters and 2.5 to 3 centimeters respectively. Then next is weight, okay. So weight के बारे में जब बात करेंगे, each kidney weighs 120 to 150 grams. So
एक किडनी का जो वजन होता है वो होता है 120 से लेकर 150 ग्राम तक। पोजीशंस ऑफ द किडनी, देखो बेटा यहाँ पे आप नहीं डिटरमाइन कर पा रहे होगे कि एक किडनी की पोजीशन, राइट की पोजीशन लोअर है कंपेयर टू अदर, बट इट इज, इन फैक्ट इट इज दिस राइट किडनी जो है it is a bit of lower, okay, it's a bit of lower placed in position compared to that of लेफ्ट किडनी। ओके बेटा, तो जो राइट किडनी है इसकी लोकेशन, द राइट किडनी इज प्लेस्ड स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर। आपको पता है यहां से क्या प्रेजेंट होता है बेटा, राइट साइड से लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो किडनी की, राइट किडनी की पोजीशन होती है दैट्स अ बिट ऑफ लोअर देन, कितनी होती है 1 to 1.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, इतनी डिस्टेंस इसकी नीचे होती है कंपेयर टू दैट ऑफ लेफ्ट किडनी, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द लोकेशन ऑफ द किडनीज। ओके, जो राइट किडनी है लोकेशन इसकी क्या है, इट इज प्रेजेंट inside this abdomen but behind the peritoneum. We already studied about this, that it is present on the posterior wall of abdominal cavity from the बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तो वहां पे ये प्रेजेंट होती है। जो राइट किडनी होती है इट इज लोकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम L1, दैट इज लंबर 1 थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारे वर्टिब्राई होते हैं, सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम L1 लंबर 1, जो प्रेजेंट होती है कहां पे 11th रिब पे, एग्जैक्टली 11th रिब पे जो L1 लंबर 1 होती है वर्टिब्राई, तो वहां से स्टार्ट होती है राइट किडनी की पोजीशन एंड अप टू द L3, दैट इज L3 मार्क L3 वटेवे तक इसकी लोकेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद जो राइट हमारी लेफ्ट किडनी होती है, ठीक है, लेफ्ट किडनी जो होती है इसका देख लो भाई साहब, इट स्टार्ट्स फ्रॉम T12। सो अब यहाँ से डिफरेंस आपको दिख रहे हैं ना, थोरैसिक 12 और ये है थोरैसिक 12, और जो ये राइट वन थी इट स्टार्ट्स फ्रॉम लंबर 1, सो एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर नीचे होती है राइट किडनी, बट जो लेफ्ट किडनी है इट स्टार्ट्स अर्लियर फ्रॉम T12, it starts from T12 thoracic 12 and at the end of level of the lower border of 12th rib it lasts up to the 12th rib, that is T12, ठीक है। So this was all about the location of the kidneys when we talk in anterior view. Now moving towards the next diagram, that is external anatomy of the kidney. तो बेटा अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द किडनी, दैट इज द थर्ड फीचर वी आर टॉकिंग अबाउट द किडनी एनाटॉमी, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। सी यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो किडनीज होती है एक्सटर्नली, एक किडनी में कौन कौन सा बॉर्डर होता है, कौन कौन सा पोल होता है, कौन कौन सी सरफेसेस होती है, वी विल टॉकिंग अबाउट दिस ऑल। जो राइट किडनी है हमारी, सबसे पहले हम बात करेंगे पोल्स के बारे में। एक किडनी के 2 पोल्स होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल, ठीक है। जो अपर पोल होता है, सुपीरियर पोल होता है, वो होता है प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द किडनीज, ठीक है बेटा, एपेक्स ऑफ द किडनीज, ये एपेक्स कहलाता है, ठीक है। और जो हमारा लोअर पोल होता है दैट इज द बेस ऑफ द किडनी, ठीक है, दैट द बेस ऑफ द किडनी एंड लेटर ऑन यू विल सी एट द एपेक्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज, यस दैट इज कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड बेटा, ठीक है। यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे एक एड्रिनल ग्लैंड। So this is about the poles. Now talking about the borders बेटा, now borders के बारे में बात करेंगे। जो हमारी किडनी होती है इसके एक साइड तो यहाँ से होता है, it's called as from the outer side, ठीक है, outer distal side, peripheral side is called as lateral border. It's convex always बेटा, it is following the convex shape as you will be seeing। रुको मैं इसको थोड़ा differentiate करने के लिए थोड़ा बना दूं। This is actually a lateral border, ठीक है, this is the lateral border and convexity, talking about the convexity, this is the convex form of this lateral border. Now secondly we have another border that is called as medial border बेटा, ठीक है, that is called as medial border. This one is the medial border, मैं आपको दिखाऊं, this one is the medial border, this is called as medial border। और जो medial border में होता है ना बेटा, from this it's convex, it follows the concave direction, ठीक है, ये concave structure follow करती है, ये वाला part, ये वाला border, ठीक है, ये concave को करती है follow, ठीक है, this follows this concave structure। Now from this medial borders there
enters and exits special structures or parts of this diagram or kidney, those were called as this opening is called as this opening that is persisting or procuring from this lateral medial border of the kidney, this structure is called as hilum बेटा, ठीक है। जो ये ओपनिंग होती है ना, मैं आपको दिखाऊं, रुको, ये इस ओपनिंग को कहते हैं बेटा हिलम, ठीक है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज हिलम, जहां से स्ट्रक्चर्स पास ऑन करते हैं, जैसे कि आर्टरी हो, वेन हो, लिम्फेटिक्स हो, नर्वस सिस्टम हो, नर्वस हो या यूरेटर हो, ये सारे के सारे कहां से पास ऑन करते हैं, इसी हिलम ओपनिंग स्पेस से। सो दिस वाज अबाउट द मीडियल बॉर्डर, दैट्स कॉन्केव बॉर्डर। नाउ टॉकिंग अबाउट द सरफेसेस, जो हमारी किडनी होती है ना, इसके दो सरफेसेस होते हैं बेटा, ठीक है, इसके दो सरफेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एंटीरियर सरफेस, जो हमें दिखता है ना यहाँ से, दिस सरफेस इट इज कॉल्ड एज एंटीरियर सरफेस बेटा। और जो इसके बैक साइड से है ना, जो हमें नहीं दिखती है, बैक साइड से जो सरफेस है ना, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर सरफेस बेटा, जो कि एक्चुअली कहाँ होती है, द सरफेस दैट सरफेस इज एक्चुअली स्टक विद द वर्टिब्रल कॉलम ऑन द बैक साइड ऑफ द एब्डोमिनल वॉल बेटा, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट द poles, borders and surfaces of the kidneys. Now moving towards the next, that is coverings of the kidney. अभी हम पढ़ रहे हैं external morphology of the kidney. Now we'll talk about the coverings of the kidney from outer to inner. बाहर से कौन है, फिर अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो किडनी होती है, the kidney is where retroperitoneal organs. So means there is no extra cushioning due to the presence of the peritoneum, and thereby no extra protection from any mechanical injury or the shock from the other subsiding structures. So talking about these layers or coverings from outer to inner, the first one that is actually perirenal fat. Perirenal fat as the word, this layer is made of the fat, ये fatish in nature होती है, and it is the outermost layer of the fat. इसका काम जो होता है, that is it is the source of the protection and the acts as an insulator. ये इंसुलेशन का काम करती है, ये किडनीज का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट मेंटेन करने में हेल्प करती है ये लेयर। सो द नेक्स्ट लेयर is that is renal fascia. It is also called as Girotas fascia. ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। इन लेयर्स के बारे में जो इनके सबसाइडिंग नेम्स है आफ्टर देयर इन्वेंटर्स, जो इनके इन्वेंटर्स है, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया है, उनके नाम के बेस पे ये पूछा जाता है कि इनका दूसरा नाम क्या है। सो द रेनल फैशिया इज द सेकंड मोस्ट लेयर। इसका जो काम होता है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज गिरोटस फैशिया, और इसका काम होता है कि ये एंकर करती है, किडनीज को फिक्स करती है और बचाती है फ्रॉम द एक्सेसिव मोमेंटस। इट प्रोटेक्ट्स द किडनी फ्रॉम मूविंग हियर एंड देयर एंड देयर बाय from other mechanical injuries and shocks also. So the third layer that is renal fascia. Third layer जो है that is the renal fascia. Posterior layer यानी बैक साइड से ये प्रेजेंट होती है, जो renal fascia होती है। anterior layer दो layers में डिफरेंशिएट होती है, anterior व्यू से, सामने वाले व्यू से, और posterior व्यू बैक वाले व्यू से। जो renal fascia from back side और posterior layer that is also called as Zuckerkandl's fascia. और ये बैक साइड से यही अगेन प्रोटेक्ट करते हैं किडनी को, एंकर करते हैं, फिक्स करते हैं किडनी को विद द अदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, उनके साथ फिक्स करते हैं और मूवेबिलिटी कम करती है, इसके मूव ऑन फ्रैक्शंस को कम करती है। टू मूव हियर एंड देयर, इट प्रोटेक्ट्स द किडनी फ्रॉम मूविंग हियर एंड देयर फ्रॉम एक्सेसिव एंड अननेसेसरी मूवमेंट्स। जो लास्ट वन है that is called as fibrous capsule. This is the actual layer. ये पूछा जाता है which one is the actual layer that is actually connected directly with the kidneys. That is actually none of this but fibrous capsule. This is present directly on the kidneys, और इसका जो काम होता है that is to protect the kidneys from any bacterial invasion or any kind of the infection, and to maintain the proper functioning of the kidneys. This layer is very important related to that. So this is all about the coverings of the kidneys, और जिसका order पूछा जाता है कि what is the order of surroundings or coverings of the kidneys from outer to inner, that is perinephric. First one it is perinephric, perirenal fat, then following by the renal fascia, anterior layer or Girotas fascia, and third one it is renal fascia again but posterior one, ठीक है, posterior one and
It's also called as Zucker Candles fascia, and the last one that is fibrous capsule beta. ठीक है, that is the fibrous capsule. So this was all about kidney anatomy part 1. In next video we'll be discussing about kidney anatomy part 2, which will be covering internal structures, blood supply to the kidney, renal pyramids, nephron, minor calyxes, major calyxes, renal pyramids, renal pathways, etc. और एक बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने MCQs ऐड किए हैं. You can try out those also to strong this concept more and more, and those questions have been asked in many competitive exams too. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और सब समझ आ गया होगा. आगे भी सपोर्ट कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, hit the bell icon so that I can continue to make the videos related to that same. तो दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय. अल्लाह हाफिज.